कोरोना वायरस के बायस अमेरिका की कई रियासतों में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ और ताहाल मुश्किलात बरकरार हैं। मरकज़ और रियासती हुकूमतें इस अमर में मदद और ताउन के लिए आगे आईं और इसी की देखा देखी मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें भी लोगों की मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रही हैं। इनमें पाकिस्तानी अमेरिकन्स की तंजीमें काबिल सताइश किरदार अदा कर रही हैं। चंद तंजीमों की कारकर्दगी पर मबनी हमारे आज के वोसा स्पेशल को आखिर तक देखिए। अमरीका भर में कोरोना के बाद ख़राब सूरत हाल में अमरीका की मुस्लिम तंजीम इक्ना रिलीफ भरपूर किरदार अदा कर रही है। इस हवाले से अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में फलाही सरगर्मियाँ भी जारी हैं। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड की सबसे बड़ी मस्जिद इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड में बड़े पैमाने पर रमज़ान फूड बॉक्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर वहाँ इक्ना के दर्जनों रज़ाकारों के साथ साथ कौन कौन मौजूद था, आइए आपको भी दिखाते हैं। Assalamu alaikum, I'm Raza Dastagir from the Long Island Halal Guide. Today we're here with ICNA Relief. We're here at ICLI distributing groceries, essential groceries to anybody in need. Yesterday we were at MDQ giving out hot meals through the Long Island Halal Guide and essential groceries with ICNA Relief. I'm just here volunteering today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amin Khwaja, the President-elect of the Islamic Center of Long Island. On behalf of the Board of Trustees, the Executive Committee, the Executive Director of the Islamic Center of Long Island, we really appreciate the ICNA Relief for being here this evening and providing the food packages to our community at this time of need. We're facing unprecedented times as an entire community and as the Ummah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And it's our responsibility as Muslims and as Islamic centers, as communities, organizations to help, especially those that are in need during these difficult times. So Jazakallah khair once again to ICNA Relief for being out here. Assalamu alaikum, my name is Dr. Arif Ibrahim. I'm the president of APNA New York chapter, which is the Association of Pakistani Physicians in North America. We are here at ICLI Islamic Center in Long Island. We are actually doing this food drive along with ICNA Relief to support our community, for those who are needy, for those who are actually poor, who lose their jobs, or there are some people who are very sick. So we actually are here to provide them some food and some other support. So this is what we are actually doing along with ICNA all over the New York City area. So this will be inshallah continuing. Assalamu alaikum, my name is Nazia. I'm volunteering at ICNA. I'm volunteering because I like to volunteer and help people who really need groceries or maybe hot food, especially during this time of coronavirus crisis and during Ramadan. And I really hope Allah accepts our contribution towards the community, inshallah. Thank you. So it's very important for all of us to come out and help us do all this stuff because at this time the elderly needs help and we have to help them all. So that's what I think is very important for us. So thank you. Assalamu alaikum, I'm here. मैं volunteer कर रहा हूँ ICNA Relief New York को. मैं अपने पापा के साथ आया हूँ और I'm really excited. ये बारिश भी हो रही है और बहुत ठंड है, but I'm still excited. And a lot of people came to a lot of people came on the line and it was really nice. इसके बाद हम लोग बात करेंगे पायो की। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के असरात के बायस मुश्किल में घिरे अफराद की मदद का बीड़ा उठाया। इन्होंने अपने ऑफिशियल पेजेस के थ्रू सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाई। इनका पैगाम यह है कि हम माशरे की खिदमत के लिए फ़ंड्स की अपील कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम सब कोरोना वायरस के बायस इमरजेंसी की सूरत हाल से दो चार हैं। पायो की जानिब से हर जुमेरात खाने पीने के सामान के अलावा रोज़मर्रा अशियाए ज़रूरिया भी तकसीम की जाती हैं। आइए आप भी इस मुश्किल वक्त में पायो का सहारा बनें।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे पाकोली की। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड अपने मेंबर्स और वॉलंटियर्स को साथ मिलाकर कोरोना से मुतासरा इलाकों में ज़रूरतमंद अफराद की ऐसी मदद की कि जैसे हुक्म है कि एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे को खबर भी ना हो। तंजीम पाकोली मुख्तलिफ सतह पर प्रोग्राम और खिदमात पेश करती है। बड़े पैमाने पर रफ़ाही काम भी पाकोली का न सिर्फ खासा हैं बल्कि मकसद भी हैं। सकाफ़ती, समाजी और सियासी ताउन के ज़रिए पाकिस्तानी अमरीकियों के इत्तेहाद और तंजीम पर भी तवज्जो देती है। कोरोना वायरस से परेशान हाल अफराद ग्रॉसरी की ज़रूरत पाकोली के ताउन से पूरी कर सकते हैं। इस हवाले से स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी राब्ता किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे खैबर सोसाइटी की। Okay, this is our Coney Island spot, Coney Island and Newkirk Avenue. Let's see who is serving. Okay, Shabir is serving. Okay, here we go. MashaAllah, very good, very good. MashaAllah, volunteers are serving. And here is the line. This is Coney Island. दीगर तंजीमों की तरह खैबर सोसाइटी ने भी इस अमर का इआदा किया कि मुश्किल में घिरे अफराद की मदद की जानी चाहिए। खैबर सोसाइटी को पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की मुस्लिम ऑफिसर्स सोसाइटी का ताउन भी हासिल है और इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है बल्कि खाना भी तकसीम किया जा रहा है। खैबर सोसाइटी की जानिब से न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ मकामात पर रोज़ाना 1000 से ज़ायद लोगों में मुफ्त हलाल गर्म खाना तकसीम किया जा रहा है। बेरिज, ब्राइटन बीच, कोनी आइलैंड एवेन्यू समेत दीगर मकामात पर खाने का इंतज़ाम मौजूद है, जिसके लिए मोबाइल ट्रक्स सरेराह मौजूद हैं। खैबर सोसाइटी का हदफ 25,000 लोगों में हलाल खाना पेश करना है। आप इसमें अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं। आइए इस अजीम मकसद में खैबर सोसाइटी की मदद करें। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फार्मेसी में तशरीफ लाएं, जहां अद्वियात के अलावा आला और मयारी क्वालिटी के स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल विटामिन्स, छोटे बच्चों के खिलौने और वॉकिंग एड्स भी दस्तयाब हैं। हमारी तमाम फार्मेसीज में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस काबिल कबूल हैं। अपनी सहूलत के मुताबिक आज ही तशरीफ लाएं। तेज फार्मेसी 834 कॉनी आइलैंड, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन नंबर 718-284-0100। नाज फार्मेसी 731 कॉनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन नंबर 718-284-4200। अब हम बात करेंगे एपैक की। अमरीकी पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप कोरोना जैसी मुश्किल सूरत हाल में साबिका रिवायात को दोहराते हुए ज़रूरतमंद लोगों को ग्रॉसरी फराहम कर रहा है और ये सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में भी जारी है। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के आगाज़ के साथ ही एपैक ने ज़रूरतमंद लोगों को 1000 से ज़ायद ग्रॉसरी पैकेज फराहम किए। एपैक जनूबी एशियन की पहली वो तंजीम थी जिसने न्यूयॉर्क में ग्रॉसरी की फराहमी शुरू की। एपैक के दस्ते के सालार राशिद अली और इनकी टीम की कारकर्दगी काबिल सताइश है।
राशिद अली ने ऑनलाइन APEC की खिदमात की तफसील बताते हुए कहा कि साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी इस कार खैर में हिस्सा लिया, जिस पर हम इनके शुक्रगुजार हैं। You have done a great job since you come here, and you've been with us anytime community needs you. You and Vice Consul General Naeem Cheema Saab, you've been there for us. So I really, give you my applause and everything what you have done for the community. So thank you for that. Thank you. And, before I go, I just, Ms. Aisha Ali said, what APEC has done. I just want to give a quick background of American Pakistani Advocacy Group. American Pakistani Advocacy Group was started about a year ago with the goal of helping the Pakistani American community and South Asian diaspora to be more active in the politics, business entrepreneurship, and basically looking at the value of how can we achieve more growth in America and especially in New York. APEC की देखा देखी दीगर कम्युनिटीज़ के लोग भी आगे आए और ज़रूरतमंद अफराद को किसी रंग, मज़हब और नस्ल की तफरीक के बगैर अशियाए ज़रूरिया फराहम की। इस अजीम काम के लिए अली राशिद ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो कदम कदम पर साथ रहे। APEC के सालार का साथ देने वाले लोगों का क्या ख्याल है ये भी आप जानेंगे, लेकिन पहले APEC के सालार अली राशिद का वीडियो बयान देखते हैं। American Pakistani Advocacy Group has so far, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, delivered 500 grocery bags, and we got a big delivery yesterday from our friends at Staten Island. They delivered us 260 bags. So our goal is that we're gonna be inshallah delivering this Ramadan package to another 260 people, and we'll be providing them for 1 month groceries that will be good enough for family of 6 people. And inshallah we're gonna deliver this in the next 1 week or 2 weeks. And after that, inshallah, our goal is to have another 250 bags, so we get at least 1,000 grocery bags coming out this month. And inshallah, we will try to keep these things going into May if needed. We will provide to anybody who needs it. So if anybody needs any groceries in New York, please reach out to any of APEC member or call 833-321-APEC. American Pakistani Advocacy Group is willing to help and want to stand with the communities in this most urgent time. Assalamu alaikum everybody, this is Amin Ghani. I'm part of the APEC group. I represent Manhattan. We have all 5 boroughs, Long Island, upstate covered. Whoever needs any help with any food, elderly people, young children, people in hardship, we're here to help you. We're doing this for our children so they can learn about what we're doing here, and just keep us in your prayers. जैसा कि आपको पता कि कोरोना वायरस का जो सिस्टम ये चल रहा है, एक बहुत मतलब कि वबा फैली हुई है उसकी, तो हम यहाँ पे ग्राउंड में जो है पाकिस्तानी अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप, वो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की कॉलें आ रही हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हम ये पूरा एक बैग है, इसमें ब्रेड हैं, बीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो पाकिस्तान अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप जो है वो कम्युनिटी की हेल्प कर रही है, जो पाकिस्तानी है, नॉन पाकिस्तानी है, तो सबको एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। ये 260 फैमिली के लिए जो बैग रेडी कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आज रात को और कल सुबह तक लोगों के घर डिलीवर हो जाएंगे, जिसमें आटा है, राइस हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, दालें हैं, बेसन है। तो बेसिकली ये 260 फैमिली के लिए, 6 पीपल के लिए, तो इस गुड फॉर अ मंथ। तो इंशाल्लाह हम ऑलरेडी 500 फैमिली को फूड प्रोवाइड कर चुके हैं, तो अभी इंशाल्लाह 260 मोर नेक्स्ट वीक आएंगे। तो सब दुआ करें कि कोरोना से जो है जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए, तो अल्लाह ताला हम सबको सेफ रखे। Assalamu alaikum everybody, my name is Farhan from Simplex Pharmacy. I'm here with American Pakistani Advocacy Group. Our community from Staten Island donated groceries for 250 families. American Pakistani Advocacy Group has already distributed about I believe 500 is the number that they've already distributed, and this is 250 more that's ready to go for 250 families during the month of Ramadan. We know the times are difficult with COVID-19 and everything. We understand there's a lot of people that are in need of medications. That's why we got involved. We're a specialty pharmacy that does free home delivery for patients. Anyone that's looking for any medication, please, this will be in the bag. Contact us. We can transfer your script and get it over to you. If there's any refills that are needed, our staff is very proactive. We will work with you. तंजीम अमरीकी पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप न्यूयॉर्क के 5 मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त खाना तकसीम कर रही है। APEC के वॉलंटियर्स क्वींस, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स और नासा समेत
कई मकामात पर मुफ्त खाना तकसीम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कोपो की। काउंसिल ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का मिशन कम आमदनी वाले तारिकीन वतन ख़ानदानों खुसूसन जनूबी एशियंस और मुसलमानों की मदद करना है ताकि वो न्यूयॉर्क सिटी के रिहायशियों की हैसियत से अपने हुकूक को हासिल कर सकें। तंजीम का आगाज़ 9/11 हमलों के बाद मारिज़ वजूद में आया। कोपो के रूहरबा मोहम्मद रिजवी को लोग मो रिजवी भी कहते हैं। उन्होंने इसकी वजाहत भी पेश की, आइए आप भी देखिए। जब मैंने काम शुरू किया था अपनी कम्युनिटी के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं काम कर रहा था उस वक़्त जब भी हमारे पास कोई अपने बहन भाई दोस्त आते थे कि मेरा बेटा पकड़ा गया है उसको रिहा कर दो, मेरा भाई पकड़ा गया है, मेरा हस्बैंड पकड़ा गया उसको रिहा कर दो, प्लीज़ हमें हेल्प करें। तो हम उस वक़्त जब हेल्प कर रहे थे, जब भी मैं फ़ोन कॉल कर रहा था सिटी को, एजेंसीज़ को, जेल सेल्स को, और मैं उनसे कहता था मैं मोहम्मद रिजवी बोल रहा हूँ और मुझे ज़रा हेल्प चाहिए, ये बंदा आपके पास है कि नहीं। तो उसी वक्त उन्होंने घबरा के कहा नहीं मोहम्मद कौन हो तुम, मोहम्मद कौन हो, मोहम्मद अपना डेट ऑफ बर्थ दो, अपना सोशल सिक्योरिटी दो, तुम कहाँ रहते हो, कितने अरसे से रहते हो। मैंने फिर ये देखा कि अगर मैं उनसे कहूँ मेरा नाम मो राजवी है तो वह कहते हैं इमीडिएटली, मुझे अमेरिकन समझ के वो कह रहे हैं कि ओह व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू नीड, आपको क्या ज़रूरत है, हम अभी आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से मैंने इतने लोगों की खिदमत कर सका फ़ौरन, और यही मैं करता गया। फिर जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब एक मकाम पे पहुंच गई, सारों को पता लग गया कि काउंसिल ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने फ़ौरन अपना नाम मोहम्मद ही रखा ताकि उनको पता हो कि ये एक मोहम्मद है जो ये काम कर रहा है। और इसी तरीके से अब ऑलमोस्ट 18 साल हो चुके हैं और हम यही काम कर रहे हैं। तंजीम कोपो कोरोना की इस सूरत हाल में बग़ैर किसी रंग, नस्ल और मज़हब और मुल्क की शनाख्त के हर जुमे को 1000 से ज़ायद अफराद में फ़ूड पैकेट्स तकसीम कर रही है। खिदमत के इस अमर में इन्हें न्यूयॉर्क सिटी का ताउन भी हासिल है। कोपो ने हर मुश्किल वक्त में लोगों का न सिर्फ साथ दिया बल्कि इनकी रहनुमाई भी की। पसमानदा तबकात को अपने हुकूक की हिमायत करने और अमरीकियों की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को समझने का इख्तियार भी दिया। इससे मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटी ग्रुपों के दरमियान इज्तिमाई ताल्लुकात उस्तवार करने में भी मदद मिली। इससे बरादरियों और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के माबैन रवाबित भी कायम हुए और यही कोपो का खासा है।